Hello everyone and welcome back to the channel Farmed Inspector Tutorials. This video is in continuation to our previous video in which we have differentiated between eukaryotes and prokaryotes, and today we will be dealing with the structure of bacterial cell, and this video is more or less about the facts and the concepts of bacterial cell structure and bacterial cell shape. And so first thing, size matters a lot. What is the size of bacteria and what is its diameter or what is its length? So yes, the diameter of the bacterial cell is 0.2 to 2 micrometer and the length is 0.5 to 5 micrometer. Then comes the first fact for the day, the first concept, the first fact for the day, which you must know being a microbiologist or being an aspiring candidate for the NET exam. Thiomargarita namibiensis and Epulopacium fischelsoni. These two bacteria are the largest bacteria. They are the largest bacteria. Okay, so Epulopacium fischelsoni size ranges about, the length of this bacteria ranges about 600 micrometer and diameter is 75 micrometer. And to your surprise, the smallest bacteria exists is a member of genus Mycoplasma. That is, it ranges about 0.3 to 0.4 micrometer. Okay, so you can now answer that which is the largest bacteria. It's Thiomargarita namibiensis or Epulopacium fischelsoni, or the smallest one is the member of genus Mycoplasma. So the concept 3 for the day is the size and the surface area to volume ratio is inversely proportional to each other. As the size increases, the surface area to volume ratio decreases. So, as the size of the bacteria decreases, the surface area to volume ratio increases, which means as the surface area to volume ratio is increasing, the internal parts of the bacteria, the internal parts in between in the body of the bacteria, the body of the bacterial cell becomes close to each other, and as they are so close to each other, the nutrients uptake becomes so easy that they don't have to go far away from their own body to take their nutrients. Now they are capable of having the nutrients within the nearby unit within the cell only. Okay, the surface area to volume ratio proved to be a very important measure in the body of bacteria, in body of bacterial cell. And in the similar manner, surface area to volume ratio, if it decreases and the size increases of the bacteria, then the metabolism or the diffusion becomes much delayed, which leads to evolutionary body of in the bacteria. So the shape of bacteria, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे shape of bacterial cell. Look, it is looking lengthy, but it's very easy. It's very conceptual and very easy. First of all, we'll focus on coccus. ठीक है, सबसे पहले हम कोकस को पढ़ेंगे. तो कोकस जो शेप होती है बैक्टीरिया सेल की, वो होती है स्फेरिकल या ओवल. तो इसको हमने अलग अलग 5 तरह से शेप्स को डिवाइड किया हुआ है. पहली है डिप्लोकोकाई. डिप्लोकोकाई का मतलब होता है वो शेप जिसके अंदर, मतलब वो शेप वो ऐसे अटेन करेगा कि आप मान लीजिए ये एक सेल थी. अब ये सेल जो कोकल सेल है ये डिवाइड होने के बाद भी अपने आप को पेयर में रखती है. जब ये खुद को पेयर फॉर्म में रखती है तो इससे क्या होता है कि ये डिप्लोकोकल कहलाती है. ठीक है, तो वो कोकस की वो शेप जो कि डिवाइड होने के बाद भी पेयर में रहा है इज डिप्लोकोकस, डाई. ओके, देन स्ट्रेप्टो मतलब सीरीज में. अब इसका मतलब है कि ये जो सेल है, ये कोकल की सेल है, ये डिवाइड होने के बाद भी क्या बनाएगी, चेन लाइक स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स चेन लाइक स्ट्रक्चर. तो डिप्लोकोकाई जैसे डिवाइड होने के बाद पेयर फॉर्म में था, स्ट्रेप्टोकोकाई डिवाइड होने के बाद चेन लाइक फॉर्म में होता है. टेट्राड्स की अगर मैं बात करूं तो टेट्राड्स कोकाई का वो शेप है, मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें जो सेल है वो डिवाइड कैसे होती है, इन 2 प्लेन्स, लाइक इन एक्स एंड वाई एक्सेस. ये खुद को 2 प्लेन्स में डिवाइड करेगी और ये बनाएगी क्या, ये बनाएगी 4 सेल्स का ग्रुप इन द शेप ऑफ स्क्वायर. तो ये सबसे पहली बात याद रखिए, किन प्लेन्स में डिवाइड करती है, 2 प्लेन्स में डिवाइड करती है. खुद को 2 प्लेन्स में डिवाइड करेगी और 4 का ग्रुप बनेगा, सेल्स का 4 का ग्रुप बनेगा डिवीजन के बाद. और वो किस 4 का जो ग्रुप बनेगा वो किस शेप में होगा, इट विल बी इन द शेप ऑफ स्क्वायर. ओके, नाउ सार्सिनाई जो होते हैं, ये सार्सिनाई वो फॉर्म है जो कि खुद को एक्स वाई एंड जी 3 प्लेन्स में डिवाइड करती है. 3 प्लेन्स में ये डिवाइड करेगी खुद को और ये बनाएगी क्या, ये 8 ग्रुप्स बनाती है. कितने ग्रुप्स बनाएगी, 8 ग्रुप्स बनाएगी इन द शेप ऑफ अ क्यूब, इन द शेप ऑफ अ क्यूब.
आपने घर पे आपने वो क्यूब से खेला होगा, है ना? उस क्यूब में अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप उसमें 8 हिस्से 8 ग्रुप कर देते हैं तो वो जैसा दिखेगा बिल्कुल वैसा ही इमेजिन करिए, और समझिए कि सारसनाएं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, 3 प्लेन्स में खुद को डिवाइड करते हैं और उसके बाद 8 ग्रुप बनाते हैं इन द शेप ऑफ अ क्यूब। ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई की ये मतलब एक फीचर है कि ये क्यों होते हैं, ये किसी प्लेन का ख्याल नहीं रखते हैं। दे आर मल्टी डायमेंशनल, मतलब ये खुद को हर डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं। हर डायमेंशन में डिवाइड करने के बाद ये कोई रेगुलर शेप अटेन नहीं करते, दे जस्ट फॉर्म ग्रेप लाइक क्लस्टर स्ट्रक्चर। ठीक है, दे फॉर्म ग्लेप क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब दोबारा से इसको टैली करें तो डिप्लोकोकाई 1 in 2 pairs, स्ट्रेप्टोकोकाई 1 2 सीक्वेंस ऑफ चेन लाइक स्ट्रक्चर। टेट्राड्स 2 प्लेन में डिवाइड करके 4 ग्रुप्स बनाते हैं और स्क्वायर फॉर्म शेप करते हैं। सार्सिनाए 3 प्लेन्स में डिवाइड होते हैं, 8 ग्रुप्स बनाते हैं और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टेफाइलोकोकाई मल्टी डायमेंशनल ग्रुप फेज में प्लेन में खुद को डिवाइड करते हैं और ग्रेप क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिमिलर गोज विद बेसिली। बेसिली के लिए अगर हम बात करें तो बेसिली को 2 तरह से हम उसको बोल सकते हैं। बेसिली कैन रिप्रेजेंट अ शेप और अ जीनस। अगर बेसिली एज इन अ बेसिली लिखा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो बेसिली कहलाएंगे। बट इफ बेसिली इज कैपिटलाइज्ड एंड इटैलिसाइज्ड देन इट बिकम्स अ जीनस। इसको याद रखिए। जैसे अब हमने यहाँ पे इसे कैपिटलाइज कर दिया और हमने इसको इटैलिक्स में लिख दिया, तो बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स, तो ये हो गया एक जीनस। ठीक है, अब इसके उस पे आइए, शेप्स पे आइए। देखिए डिप्लोबेसिली, जैसे डिप्लोकोकाई था बिल्कुल वैसे ही डिप्लोबेसिली होगा, बट ये सर्कुलर पेयर में बनाते हैं, ये रॉड लाइक बनाएंगे स्ट्रक्चर अपना। ठीक है, तो ये रॉड लाइक से रॉड लाइक के अंदर पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये रॉड लाइक से chain of rod like structures बना देते हैं, streptobacilli, similar to streptococci. Now comes vibrio. These are comma like structures that is the shape of a bacterial cell. ठीक है, द नेक्स्ट कम्स स्पिरुला। स्पिरुला जो होते हैं वो स्पाइरल लाइक शेप और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। स्पाइरल दोनों होते हैं पर 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे, एक रिजिड होता है, एक होता है स्पाइरल। तो जो रिजिड फॉर्म होती है, रिजिड स्पाइरल फॉर्म इज कॉल्ड स्पिरुला, और जो फ्लेक्सिबल स्पाइरल फॉर्म होती है इट्स कॉल्ड स्पाइरोशीट्स। तो अगर आपके एग्जाम में कहीं पर भी लिखा है बुक में स्पाइरोशीट्स, तो आपको पता चल जाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान आ जाना चाहिए कि जो फैक्ट है वो ये है कि वो बैक्टीरियल सेल जो फ्लेक्सिबल और स्पाइरल शेप में है दैट इज कॉल्ड स्पाइरोशीट्स। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि स्पाइरोशीट्स होते क्या है। नाउ दीज आर द कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज कि बेसिलस क्या होता है, बेसिलस किस शेप में एग्जिस्ट करता है। कोकस क्या होता है, कोकस 4-5 शेप्स में अलग अलग शेप एग्जिस्ट कर सकता है और आपको पता है आप किन किन शेप्स में। विब्रियो कॉमन लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पिरुला जो होता है वो 2 शेप्स में फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पहली शेप खुद स्पिरुला और सेकंड है स्पाइरोशीट्स, ताकि फ्लेक्सिबल होती है, ये रिजिड होती है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, मोनोमॉर्फिक एंड प्लेओमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है, देखो हर बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी सिंगल शेप को अटेन करके रहे। ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि हर एक बैक्टीरिया चाहता है कि वो सिंगल शेप अटेन करके रहे, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिंगल शेप अटेन नहीं कर पाते। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है शेप को चेंज करते रहने की। तो जो बैक्टीरिया अपनी शेप को सिंगल शेप को अटेन करके रहते हैं उन्हें कहते हैं मोनो मतलब सिंगल, मॉर्फिक मतलब डायमेंशनल। मोनोमॉर्फिक, मोनो शेप है उनकी। और प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, मतलब वो उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप्स चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप्स, दे आर वेरी वर्सेटाइल। तो ये होते हैं प्लियोमॉर्फिक। इट्स एग्जांपल, लेट्स से कॉर्नी बैक्टीरिया इज एग्जांपल फॉर प्लियोमॉर्फिक। ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट्स आर क्लियर फॉर यू. So stay tuned for the next video. We will be coming up with such kind of facts and interesting video and material for you. Thank you.